السلام علیکم دوستو، بڑی اچھی اچھی خبریں ہیں تدی میں جھاتی مار کے آیا تھوڑے کولوں کی حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ اج 30 جولائی تو ایک دن ہو رہ گیا جی، جولائی بھی ختم انشاءاللہ۔ جولائی تو بعد اگست موسم کافی بارشوں کی وجہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ستمبر تو بالکل ہی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن گرمیاں کا عذاب سر جی ساڈے تے رہندا ہے، ہمیشہ رہندا ہے۔ اور اج جناب علی جمعرات کا دن ہے، نیک دن ہے، پیرا فقیراں دا دن ہے۔ ایش کرو، جڑے جڑے مندے ہو پیرا فقیراں نو، او ایش کرن، صدقے خیرات دین۔ کئی غریب لوگ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ یار جمعرات آئے گی تو سانو تھوڑا جہا اچھا کھانا ملے گا، کوئی دیگ دے چاول مل جائیں گے۔ لوگ تقسیم کرتے ہیں نا سر، صدقہ خیرات بھی لوگوں نے دن بنا لیا ہے۔ بہرحال ہمارے اسلام میں تو جمعے کو فضیلت ہے، لیکن ہم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کے لیے جو ہے وہ ہفتے کا دن ہے، اور کرسچین ہمارے بھائیوں کے لیے اتوار کا دن ہے۔ تو یہ دن ہے سر جی، یہ دن ہے جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج بہت بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو خبر یہ ہے کہ صدر زرداری دا نٹ بولٹ کس دیتا گیا ہے۔ ہاں، اے جڑا وہ بلاول بھائی جڑا نا، وہ جڑا انج ٹپ رہا سی نا، اج تو بعد انہوں تھوڑا سکون ملے گا۔ پھر کل جڑا بلاول نے بیان دیتا ہے، کہتا ہے ابھی میرے پاس آخری تیر باقی ہے، میں الیکشن کو مسترد بھی کر سکتا ہوں۔ بیٹا تاڑے کو اتنی جرت ہوتی تو تسی پہلے ہی کر دینا سی۔ یہ سب سر پہ چڑھایا ہوا ہے ہمارے شہباز شریف صاحب نے، ورنہ ایڈی گیم نہیں سی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سر جی، آج لاہور کے باغبان پورہ کے علاقے میں چھت گرنے سے 10 بندے فوت ہو گئے ہیں، ہلاک ہو گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، اور 4 بندوں کی ابھی ڈیڈ باڈیاں اور ملنی ہیں، تو 14 بندے سر جی سالگرہ مناتے ہوئے۔ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اچھا جی، آگے آئیں جی۔ امریکہ نے ایران کی آبادی پہ حملے کیے ہیں۔ اس سے آگے آپ سے بات کریں گے کہ دنیا نے اور یو اے ای نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے، جنہیں کہ اسی ساڑھے پیسے کڈو۔ انہوں نے پتہ چل گیا کہ اب پاکستان کی خطے میں کتنی اہمیت ہے، اور یو اے ای نے رابطہ کیا ہے، اور کویت نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور اردن معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ اور سر جی اسی پنڈ دے چودھری بن گئے آگے۔ ہاں جی، مئی 2025 کے بعد۔ اور خدا دے بندے، آصم منیر دی تعریف کرو یا نہ کرو، شہباز دی کرو نہ کرو، پاکستانی ہون تے تو فخر کرو۔ کسے کام تے ہم مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، اور کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ اور بھائی جو ہمیں عزت مل رہی ہے نا، کل پتہ کیا ہوا ہے؟ آج ہم نے سعودی عرب کو 3 مہینے کے بعد سارے پیسے واپس کرنے تھے۔ سعودی عرب نے کہا جاؤ 3 سال کے بعد کرنا، 3 مہینے نہیں، 3 سال۔ یہ انج رحمتہ تے برکتہ نہیں ہو رہی ہیں، یہ اوپر والے کی مہربانی سے اور پاکستان کی محنت سے۔ اس محنت میں آصم منیر کی محنت، شہباز شریف کی محنت، اسحاق ڈار کی محنت، محسن نقوی کی محنت، اور پھر ساری کابینہ کی محنت، اور پھر عوام کی محنت۔ کتنی باتیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ یو اے ای نے تعلقات بحال کرنے کے لیے پاکستان سے رابطہ قائم کر لیا ہے، اور یہ تینوں میں نے ملک آپ کو بتائے ہیں، کویت، اردن۔ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اب پاکستان وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کی انڈیا کو شکست دینے کے بعد بڑی اہمیت بنی ہے۔ پاکستان کا اسلحہ بک رہا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ اگر 6 مہینے ہمارا اسی طرح اسلحہ بکتا رہا تو ہم آئی ایم ایف کا سارا قرضہ اتار دیں گے۔ شکر الحمدللہ۔ اور ساروں کی کہتے ہیں 100 سال بعد کدی سنی جاندی ہے، ذرا محاورہ مکمل کرنا۔ 100 سال بعد کی ہے سر جی، اروڑی تے کدی سنی جاندی ہے، میں نہیں پتا، اے فکرہ تسی مکمل کرنا ہے۔ 100 سال بعد کس غریب بندے دی بھی سنی جاندی ہے، کوئی محاورہ ہے ایسا؟ اچھا جی، تو پاکستان کی اہمیت، سعودی عرب نے قرضہ
ओवर रूल कर दिया है, ओवर रूल, और उन्होंने कहा है कि जनाब अली आप हमें 3 महीने की बजाय 3 साल में दें, ऐश करें। और पाकिस्तान ने उनसे इवन पता चला कि पेट्रोल भी उधारा मांग लिया है। ठीक है जी। अगली खबर जी, बिलावल की। मैंने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल ने की थी उसके ऊपर मैंने बताया था कि बिलावल बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, सियासी तौर पे नाबालिग है। ठीक है, वैसे तो 38 साल का हो गया है, लेकिन सियासी तौर पे कह रहा हूं, सियासी तौर पे नाबालिग है। और कभी धमकी देता है, कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी तू पागल लगता है, कभी आवारा लगता है। ये गाना है ना, ऐसा ही वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं सारा इलेक्शन ही मुस्तरद कर देंगे। फिर की होएगा? कहते तनख्वाह बढ़ाओ, वरना कहते जी वरना फिर उसे तो गुजारा करेंगे। बढ़ा दो। असल में इनको सर पे चढ़ाया है शहबाज शरीफ ने। जब सारा कुछ इनकी 60 सीटें हैं, शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त सीटें हैं नून लीग की 126, तो सब कुछ इनको दे दिए। 4 गवर्नरों में से 2 गवर्नर ले लिए, उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत ले ली है। नहीं बनती थी बलूचिस्तान की हुकूमत, ले ली है। सिर्फ सिंध की इनकी बनती थी, डेसू सिंध न डेसू, सिर्फ सिंध की बनती थी। तो फिर इनको जनाब सेनेट का चेयरमैन बना दिया, सारे ओहदे दे दिए। अब क्या कह रहे हैं कि जनाब हमारे 8 जज लगाए जाएं। देखो 10 जजों में से हमारे 8 जज लगाए जाएं। शहबाज शरीफ ने कहा जाओ मुंह धो के आओ, हमने मेरिट पे लगाने हैं, मैंने नहीं लगाने, मैंने नहीं इंटरव्यू करने, मैंने मेरिट पे लगाने हैं। तो अभी तक वो सदर जरदारी ने जजों की समरी रोक दी है। अच्छा, इन्होंने क्या क्या बुरे काम किए हैं जी? जजों की समरी रोक दी है जरदारी ने। भाई तुम्हें क्या है, पंजाब में जज लग रहे हैं, मेरिट पे लग रहे हैं, दस्तखत करो। लेकिन ब्लैक मेलर है ना सर, वो कहते हैं ना, जो इमरान खान कहता था ना कि ये बम्बिनो सिनेमा की टिकटें ब्लैक करता था, वही इसने सिलसिला अभी तक जारी रखा हुआ है। बंदे की नेचर नहीं तब्दील होती। वैसे जजों के दस्तखत नहीं कर रहा, भाई क्या फर्क पड़ रहा है तुम्हें? अच्छा जी, पहले दिन से ये देखें पंजाब नहरें बनाने लगा, तो इन्होंने क्या ड्रामा किया सिंध, हमने जी नहरें नहीं बनाने देनी, पंजाब में नहरें नहीं बनाने देनी। और ऊपर से कहते हैं 18वीं तरमीम में सूबों को इख्तियारात दे दिए गए। तो किधर दे दिए गए हैं? आपने तो पूरे सिंध को खड़ा कर दिया था कि जनाब पंजाब वाले ताड़ा पानी रोक रहे हैं जी। और इससे पहले कालाबाग डैम का ड्रामा किसने रचाया है? इन्होंने ही रचाया हुआ है, लोगों को वोट लेने के लिए कि डेसू सिंध न डेसू, तो कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे जी। तो ये सारी मुल्क दुश्मन पॉलिसियां हैं, लेकिन इसके ऊपर ये अमल करते हैं और अपना हिस्सा लेते हैं और सिंधु देश का नारा भी लगा देते हैं, अंदर खाते। काश हमारी जो पार्टी है ना मुस्लिम लीग नून, वो सिंध में भी दौरे करती, लेकिन जरदारी ने कहा जी सिंध वाले पासे मुंह ना करना, और ये नहीं गए, इन्होंने कोई जलसा नहीं किया। जाए ना नवाज शरीफ साहब जाके खिताब करें, इनको सेक दे ना सियासी तौर पे, ये ठीक हो जाएंगे। वहां कितनी बड़ी पार्टी है, किसी पार्टी के साथ नून लीग इत्तेहाद करे, पीर पेगाड़ा तो है ही मुस्लिम लीग नून, उनके साथ इत्तेहाद करो। पलीजो की पार्टी है, ये जरदारी ने क्यों नहीं अपने ख़ानदान में से गनवा भुट्टो को आगे नहीं आने दिया, और वो मुर्तज़ा भुट्टो, वो जुल्फ़कार जूनियर जो है, उसको आगे नहीं आने दिया? क्यों? इसने कहा था कि मैं जनाब तुम्हें एलिमिनेट ख़त्म कर दूंगा। आप ये ना समझे कि आप सियासत करेंगे। वो बेचारी फातिमा जो मुर्तज़ा के असल बच्चे हैं, जो असली भुट्टो हैं, ऐते जरदारी है ना, कल आप ये नहीं कहते कि मैं जरदारी का बेटा हूं, तो मैं जरदारी हूं। तो वो असली भुट्टो फैमिली कौन है बताएं? मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी और बेटा, वो जुल्फ़कार जूनियर और फातिमा। लेकिन उनको सियासत में ये नहीं आने देते। फातिमा सियासत में आ सकती है, बड़ा अच्छा अखबारों में वो मजमून लिखती है, लेकिन नहीं सर जी, ये ब्लैक मेलर हैं, लेकिन ये इनकी अब ज्यादा चलने वाली नहीं है। ठीक है, अगली खबर सर जी। सर किबला दुरुस्त हो जाएगा। आज
मोहसिन नकवी एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके जरदारी के पास गए हैं। उन्होंने कहा तुमने लिमिट क्रॉस कर दी हैं, अपने नाबालिग बेटे को समझाओ, जो सियासी नाबालिग है ना उसको समझाओ, इतना शोर ठीक नहीं होता, तुम हारे हो, तुम गिलगित बल्तिस्तान में भी हारे थे और उधर हमने आपको हुकूमत बना के दी है। ये मोहसिन नकवी ने आज वाजे कर दी है, अभी हेडलाइन लगी हुई है सुर्खियों की कि मोहसिन नकवी की स्पेशल मुलाकात हुई है जरदारी से। जरदारी को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अपने बिलावल भाई को समझाओ, वरना शेख रशीद की ज़बान में लोग बातें करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये मामलात हैं और आज के बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि सियासी जो झाग सामने आ रही है ना आपके, वो बैठना शुरू हो जाएगी। और मोहसिन नकवी ने जरदारी साहब को ठीक ठाक डोज दे दी है, फीड दे दी है कि खबरदार पाकिस्तान के खिलाफ बात आप नहीं कर सकते। अगर ये 47 फार्म वाले हैं ना तो फिर इस्तीफे दो, जिनके वोटों से आप बने हो। ऐ नहीं कि जनाब अली बोटियां हराम ने ते शोरवा हलाल है, यह शोरवा हलाल है, शोरवा हराम है तो बोटियां हलाल ने। ऐ नहीं होएगा, ऐ नहीं होएगा। मीठा मीठा हप हप ते कड़वा कड़वा थू थू, ऐ नहीं होएगा। समझा दिया गया है और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ठीक है, अगली खबर सर जी। अफसोसनाक वाक़या हुआ है, मरीम नवाज ने भी इसके ऊपर अफसोस किया है। एक 2 मरले का घर था, उसके वो गार्डर TRN वगैरह वाली छत थी, तो वो 3 मंजिला था। तो वो जनाब अली सालगिरह बच्चे की मना रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे, बहन भाई आए हुए थे सारे, तो वो छत गिरी है और सर जी 10 बंदे तो मौके पे उनकी डेड बाडियाँ निकली हैं ना, और 4 की अभी डेड बाडियाँ निकाल रहे हैं, तो 14 बंदे जनाब एक दिन में ये शहीद हो गए। ठीक है, तो अब इसका वो देखेंगे। हाँ जी, लो सर जी, अगली खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान के आबादी वाले इलाकों पे हमले किए हैं और ये दूसरों को इंसानियत की सबक देते हैं, लेकिन ख़ुद जो है ये सारे वो काम करते हैं जो गैर इंसानी करते हैं, जो NGOs हैं फिर इनके लिए खामोश हो जाती हैं। ठीक है, तो अमेरिका ने इनके उर्दन के ऊपर जो हमला किया है, अमेरिकन उर्दन अड्डे के ऊपर, उर्दन के ऊपर नहीं, और उर्दन के अमरीकी अड्डे के ऊपर जो हमला किया है उसमें उन्होंने तबाही मचाई है और उसका बदला लेने के लिए उन्होंने हमले कर दिए हैं ईरान की आबादी के ऊपर, जिससे 14 से ज़्यादा बंदे शहीद हो गए। ठीक है, और फिर अमेरिका ने एक और मज़े का खेज बात की है, अमेरिका का ईरान के साथ कोई ट्रेड नहीं है, पाबंदी है 40 साल से। ठीक है, और अमेरिका ने ईरान के ऊपर भी टैरिफ लगा दी है कि जनाब ये हमारे साथ ट्रेड करोगे, तो भाई जब ट्रेड है ही नहीं तो टैरिफ किस बात का। रूस के ऊपर भी टैरिफ लगा दी है। ये सर जी इसका भी मेडिकल चेकअप कराओ, डॉक्टर इसका जो ट्रंप है ना, इसका मेडिकल चेकअप कराओ, बोर्ड बैठे और इसका मेडिकल चेकअप कराए। ठीक है, ये वाला। और इसके अलावा जनाब अली मरीम नवाज साहबा ने कहा है अभी तकरीर करते हुए कि पंजाब के 40 अजला में CCTV कैमरे एक्टिव हैं बिल्कुल, और अब जराइम में सबसे कम जुर्म जो है वो पंजाब में हो रहे हैं और 2 घंटे में मुलजम पकड़े जाते हैं। और आज उन्होंने पुलिस की जो लेडीज़ पुलिस है उसकी पासिंग आउट परेड से खिताब किया है और बहुत प्यारे मैसेज दिए हैं। और उन्होंने कहा जी कि जब चीफ मिनिस्टर लेडी बन सकती है तो IG पंजाब भी लेडी बन सकती है। ये जज्बा लेके निकले आप, लोगों की खिदमत का जज्बा। आपको वर्दी जब आप पहनते हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये हम इस चीज़ में वो करेंगे। ठीक है, और बाकी सर जी आखिर में आपको बताऊं कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो कश्मीर में ड्रामे कर रही थी ना, उसका वो निकला है कि जनाब वो तो उन्होंने खून की बजाय रंग वहाँ बखेरा हुआ था और लोग सो रहे थे। जब CCTV वाले आए उन्होंने दबका मारा तो वही जो मरे हुए बंदे थे वो जिंदा खड़े हो गए। मुआवजे हो रहे हैं, देखें
ये ड्रामे इन्होंने कहाँ से सीखे हैं आपको पता है? ये ड्रामे एक इंतशारी पार्टी हमारे मुल्क में सारा ये सिखा गई है। और एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है इसकी सुहेल अफरीदी की। वो कहते हैं भाई इस हाल में जितने बैठे हो इमरान खान के लिए तालियां बजाओ। वो 10-12 लोग ऐसे तालियां बजाते हैं। उन्होंने कहा जी अब आप एस्टेब्लिशमेंट के लिए तालियां बजाएंगे। सारे हाल ने तालियां बजा दी, सारे हाल ने एस्टेब्लिशमेंट की। और एस्टेब्लिशमेंट हमारे जनाब माँ बाप का दर्जा रखती है, वो हमारे मुल्क के लिए काम करती है। उसमें हमारे सबके बहन भाई बेटे बेटियां शामिल हैं। आप देख लें, आपने रिश्तेदारों में देख लें, दोस्तों में देख लें, सबके बहन भाई हमारी फौज में हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए हैं। ठीक है। और वो तो मौलाना फजल रहमान के बयान को किसी ने नहीं खरीदा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तनख्वाहों के लिए शहादतें देते हैं। कितना लोगों ने लान तान किया है, कितने मौलाना फजल रहमान साहब के मानने वाले हैं, लेकिन सब ने उसके ऊपर तनकीद की है कि ये बयान गलत है। पाक फौज हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और मुनसिफ अवान तेरा अल्लाह नगेबान, जिंदाबाद पाकिस्तान, पाइंदाबाद ईरान। ठीक है। कानूनी मशवरों के लिए हमारे साथ रब्ता कायम करें। और आपने अगर कानूनी कार्ड हमारा जस्टिस पार्टी का बनाना है या सहाफ़ियों वाला कार्ड बनाना है तो उस हवाले से भी आप हमारे साथ रब्ता कायम करें, आपको वो कार्ड बना के देंगे। और इसके अलावा रिश्ते नातों के हवाले से जो मेम्बरान का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है उसके अलावा से बच्चों बच्चियों के आप CV बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।